Dear student, good morning to you all. Myself, Brijesh Maurya. I am a PGT mathematics teacher. Welcome to you all YouTube channel of Central Public Academy. I am going to teach first chapter of class 12, that is relation and function. Dear students, very interesting topic, that is relation. Relation, it means relation starting to है और आप यूँ कह सकते हो कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी का जब बर्थ होता है उसी समय उसका रिलेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो रिलेशन सबसे पहले जो फर्स्ट उसका रिलेशन होता है वो अपने मम्मी के साथ उसका रिलेशन डेवलप होता है। ये फर्स्ट रिलेशन जो न्यूबॉर्न बेबी का हुआ वो फर्स्ट रिलेशन इज डेवलप विद मदर। Consequently, their relations with father, that is mother, father, sister, uncle, and many more others. So this is, you can suppose that this is A and this is like one first relation, that is 1, 2 and that is 3. So here a set, it means in relations one more thing is that is the set. Set you already studied in class 11th. Set is a well-defined collections of objects, member or elements. So set, it means every relation is defined on set, and this is also a set because it is well-defined, and this is also a set. It is also well-defined. So dear student, this is set. If you suppose this set is A, and this is contain only one element, that is A, and this set is supposed to be set B, and this is contain 1, 2 and 3, that is 3 elements. So the relations, this is also, you know, this is non-empty set and this is also non-empty set. This non-empty set, simply you tell them the sets having no elements is called non-empty set, and the relation is defined only on the non-empty sets. It is not defined on the empty set, never. So the relation defined on non-empty sets, here A and B both are non-empty sets. So now you are moving to the next thing, that is subset. One more requirement is there, that is subset. Subset. So subset, it means a set. X is said to be subset of set Y if every element of set X is an element of set Y.
subset. What do you mean by subset? Subset it means any set is said to be subsets of other set if every element of this set is an element of the set this. That is why. So here relation is also related to this. It means one more thing is there, that is the Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. It means cross product of set A and set B. That is, if you cross product of set A and set B, so what do you mean by this? This is A is product with this set, then we get A1, A2, A3. That is order pair. So Cartesian product of set A and B, set B is A1, A2, A3. Like this. So now we are moving to the relations. तो relations means आपने ये समझा कि जब ये A it means ये little child अपनी मॉम के साथ फिर फादर के साथ इसी तरह सिस्टर्स के साथ it means ये क्या हो रहा है, हैंडशेक कर रहा है या फिर उनसे मिल रहा है, वही सेम चीज यहाँ हो रहा है. आगे रिलेशंस है क्या, हम लोग इसी की तरफ मूव कर रहे हैं कि रिलेशंस आखिर इसने जनरेट किया तो होता क्या है, कैसे हम इसको रिलेशंस कहेंगे. तो रिलेशंस की मीनिंग होती है बेटा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. इट मींस आर, लिटरली रिलेशंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं. तो आर इज सेड to be relation from set A to set B if R is subset, if and only बोल सकते हैं आप, R is subset of A Cartesian product B. इट मीन्स रिलेशन तभी फॉर्म होगा जब वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा. तो R is relation from set A to B if and only if R is subset of a Cartesian product B. So R is subset of a Cartesian product B. सबसेट का कांसेप्ट अभी आप लोगों ने देखा है. तो R here R containing A1, A2. That is R1. Suppose telling this for R1, R2. That is A3. So look here, at here R1, clearly R1 is subset of a Cartesian product B because R1 is subset of a Cartesian product B. Because every element of R1 is an element of A cross B. So R1 is relation. R1 is relation from set A to set B. Same
R2 is a C, R2. A13 is here. A13 is also here. A4 is here, but A4 is not here. It means A4 से भी connect कर रहा है, but here A4 is not here. So R2 is not subset of A Cartesian product B. R2 is not subset of A Cartesian product B. So it is R2 is not subset. R2 is not relation from A to B. And simply R3, clearly R3 is also A1, A3, A1 and A3 are present, and R3 is subset of A Cartesian product B. So R3 is relations on A Cartesian product B from set A to set B. So here we see that the R1 is relations, R2 is not relations, and R3 is a relation. It means आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि रिलेशंस होने के लिए हमेशा उसको उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा. जब तक वो सबसेट नहीं होगा तब तक वो रिलेशंस फॉर्म नहीं करेगा. तो डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि आपको रिलेशंस क्या होता है. अब हम नेक्स्ट वो करेंगे. ये जनरली आप बोलते हैं कि आर इज, एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ दे रहे हैं आपको स्टार्ट ना करके. आर इज सेट टू बी, एक नॉन एम्प्टी सेट है. आर इज सेट टू बी relation in set A if and only if R is subset of A Cartesian product. That is शॉर्ट में अगर मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहेंगे A B select A belongs to A, A belongs to. अब जो नेक्स्ट, इसको हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि ये अगर ये इसकी मीनिंग क्या होती है कि A B belongs to R, इट मींस हम लोग इसको क्या रीड करते हैं कि A is related to B. इसको रीड करना होगा तो आप रीड कर सकते हो कि A is related to B. इसके एक और शॉर्ट फॉर्म में आप लोग राइट कर सकते हो A is related to B. Okay, it means A is related to B. The meaning of this is same as the meaning of this. A is related to B. So now we are moving to the next thing, that is domain and range of relation. Domain and range of relation. Here, domain and range of relation, it means R is said to be relation in a set A. In a set A. That means R is subset of A Cartesian product B. मीन्स मैथमेटिकली अगर आप इसको राइट करते हो तो आप ऐसे लिखोगे A B such that
A belongs to A and also B belongs to A. So domain of the relation. What do you mean by domain of the relation? Domain of the relation, it means the set of coordinate of the first component of the relation is called domain of the relation. It means जो first component का set अगर हम लोग फाउंड करेंगे तो वो domain of the relation होगा. इसको शॉर्ट में हम लोग domain of the relation R कर सकते हैं. इसमें अगर ये इसके पास कई सारे नंबर्स हो तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं A such that A belongs to A. It means जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो देख रहा है उसका सेट अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो हम लोग को डोमेन ऑफ द रिलेशन मिलेगा. और जो सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट है अगर उसको कंसीडर करेंगे तो हमको रेंज ऑफ द रिलेशन मिलेगा. सो दैट इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं सो दैट ए बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द रिलेशंस. सेम उसी तरह से रेंज ऑफ द रिलेशंस फाइंड करना होगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है उसको अगर हम लोग कंसीडर कर लेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशंस. बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू. इट मींस सेकेंड कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट्स कोई भी चीज आप लोग बोल सकते हैं तो सेकेंड कंपोनेंट्स का जो सेट होगा वो आपका रेंज ऑफ द रिलेशंस होगा. इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज किसी भी रिलेशंस का फाइंड कर सकते हैं. एक और एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे आप फाइंड कर लेंगे क्लियरली कोई रिलेशंस है. RBO relation on inside A defined as R1 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 और ये 3 3 है. अगर इसका डोमेन अगर आपको निकालना है फाइंड करना है फाइंड डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन. So simply you have to take first one. So insert you know solution. Insert you know we have not write the repeated elements. So in case only write first coordinate that is 1 1 1 is there. So only you have to write 1. Here 2 2 2 is there. So you write 2. And here 3 3 3 is there. So you have to write 3. So this is the domain of the relation. Simply you have to find range of the relation. Then you take only the second coordinate of this, that is 2 3 and 1. Okay. Now we are moving types of relation.
types of relations. Types of relations. The first type is empty relation. Empty relation. नल रिलेशन इसी को कहा जाता है नल रिलेशन, नल और void relations. Similarly, empty relation, null or void relations. So, what do you mean by that is the empty relation? It means a relation R is said to be empty relation or null relation or void relations if no elements of set A is related to any element of set A. It means किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे या उसी एलिमेंट से अटैचमेंट अगर नहीं हो रहा है तो उस तरह के रिलेशंस को हम लोग एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशंस कहते हैं. चलिए इसको दैट इज आर. अगर आर एक एम्प्टी रिलेशन है तो इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और फाई मींस इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए. क्योंकि आपने रिलेशंस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि रिलेशन तभी फॉर्म होता है जब वो सबसेट होता है और आपको पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट. So it is an empty relation. It means no element of A is related to any element of A. So that relation is called empty relations. Example, suppose कि कोई सेट A है और इसके पास एलिमेंट 1 2 3 4. इसके रिलेशंस आर डिफाइंड है A B such that A difference B is equal to suppose कर लीजिए 20 where A B belongs to set A जहाँ A और B क्या है इसी सेट के मेंबर है. सो आप देखेंगे कि इसका डिफरेंस कभी भी 20 नहीं हो सकता. 1 डिफरेंस 2 निकालेंगे -1 आएगा. 1 के साथ 3 का डिफरेंस निकालोगे तो फिर -2 आएगा. 1 के साथ 4 का डिफरेंस निकालोगे -3 आएगा. सो इसके कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिनकी जो इस रिलेशंस को क्या कर रहे हो सेटिस्फाई कर रहे हो. इट मींस आर के पास क्या है कोई एलिमेंट्स एक कोई ऐसा ए बी इसके पास और ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट. फॉर ऑल ए बी के लिए इसके पास कोई इस तरह का मेंबर नहीं मिल रहा है तो हम क्या कह देंगे कि ये रिलेशन कौन सी रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन. ओके इज इट क्लियर. तो एम्प्टी रिलेशन इट मींस टोटल ए और बी जो इसमें है उनके लिए कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं मिल रहा. दैट रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशंस. Now, and also this relation is the smallest relation on the set. This relation is called the smallest relation on this set. Next type, second, that is universal relation. इसके नेम से भी क्लियर है यूनिवर्सल रिलेशन. A relation R in a set A is said to be universal relation if R itself a Cartesian product A इक्वल है. इट मीन जो सबसेट था वो खुद ही उस सेट के क्या हो गया इक्वल हो गया. So that relation is called universal relation and that is the largest relation. Example के लिए वो
सपोज करिए कि अगर इसके पास ए कोई सेट है और ए और बी दो मेंबर है इसके पास, तो आर जो है वो इटसेल्फ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की इक्वल है, दैट इज इसके पास ए बी है, ए बी भी है, बी ए भी है और ये सी बी। So that relation is called inversor relation, and this is the largest relation on the set. ये largest relation है। इसके पहले जो हम लोग relation देखे उनकी relation वो आपका smallest relation है, क्योंकि inversor relation से बड़ा कोई relation set पे नहीं हो सकता। और इन दोनों relations को अगर हम लोग combine करते हैं तो ये हमेशा exist करते हैं, they always exist, and these two relations named as, that is trivial relation. It means empty relation भी हमेशा exist करेगा और inversor relation भी हमेशा exist करेगा। Next type is the third one, identity relation. Identity relation. A relation R on a set A is said to be identity relation if A such that A belongs to A. चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल कि जब एलिमेंट खुद से खुद को रिलेट करे, ओके, तो उस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस कहते हैं। जैसे अगर उसके पास 1 2 3 हो तो 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो इस रिलेशन को आप आइडेंटिटी रिलेशंस कहेंगे। ओके, इसको कभी कभी आई ए से लोग डिनोट किया जाता है, आई ए इज इक्वल टू दैट इज ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो ये रिलेशन जो होता है आपका वो आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन जो होता है उस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका टाइप है रिलेशंस का, फोर्थ वन, दैट इज ए रिफ्लेक्सिव relation. Reflexive relation. Reflexive relation. Reflexive relation, it means a relation R in a set. A relation R in a set A is said to be the fourth one of kind reflexive. That is R is equal to, यहाँ भी कंडीशन वही है कि A सब्जेक्ट for all, for each या for all आप बोल सकते हैं, for each A belongs to। अब आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में एक चीज आएगी कि वहां भी ए से रिलेशन होता था और रिफ्लेक्सिव में भी आपका ए से रिलेशन है, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा और वो आपका आइडेंटिटी होगा। उसके साथ कंडीशन ये होगा कि वो केवल ए से रिलेशन तो रखेगा ही रखेगा। अगर उसके पास 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट है, ए बी सी कह लीजिए, तो वो ए बी बी और सी सी के साथ रिलेशन रखेगा। यहाँ भी ये कंडीशन है कि ए बी बी और सी सी के साथ कंडीशन रखेगा, बट इसके साथ अगर इसके पास ए बी भी आ जाए, ए सी भी आ जाए, तो भी ये एक्सेप्ट करेगा रिफ्लेक्सिव, बट आइडेंटिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी की मांग जो है वो सिर्फ इतनी है कि वो केवल
सेल्फ से सेल्फ को ही रिलेट करेगा, वो किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेगा। बट रिफ्लेक्सिव में आप ए इट मीन्स ए तो होना चाहिए, इसके साथ में अगर कुछ आ जाएगा उसको भी वो क्या कर लेगा, रिलेट कर लेगा। जैसे एग्जांपल अभी मैंने जो बताया है आपको कि अगर ये सेट ए है, इसके पास ए बी और सी है, और ये रिलेशन आर है, इसके पास अगर ए है, बी बी है और ये आपका सी सी, और इसके साथ अगर ए बी भी आ गया या ए सी भी आ गया, और ये दूसरा रिलेशन आपके पास R2 है, इसके पास बी बी और तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी की मांग थी कि केवल हमको ए ए बी बी और सी सी चाहिए जो इसमें है। ओके, और इसके साथ अगर इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, बट जो रिफ्लेक्सिव होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी हो जाए। इज इट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज symmetry. Same by definition, a relation R in a set A is said to be symmetric if A related to B, A का रिलेशन अगर B के साथ है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा देन B रिलेटेड टू मीन्स आप ये कह सकते हो कि राम का संबंध अगर श्याम से है तो श्याम का संबंध भी राम से होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फॉर ऑल, ये सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर सेट ए पे हम रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं, सारे ए बी के लिए ये कंडीशन होल्ड होगा, तो उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि कोई रिलेशन अगर कुछ ऐसा है, सेट है ये 1 2 2 ये 1 1 और 2, देखो रिलेशंस आ रहे क्या, अगर 1 2 आर में रिलेट कर रहा है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 1 भी आर में, तो इस रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन कह देंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। Next, that is 6 1 from GQ. Relation. A relation R in a set A is said to be transitive if A related to B and B related to C, then A related to C. It means A related to B and B related to C, then A related to C. शॉर्टली आप समझ सकते हो, जैसे राम है, दैट इज राम, और ये आपका क्या है, श्याम है,
और ये कोई और है, सपोज कर लो कि ये पंकज है। तो इसकी मीनिंग ये है ट्रांजिटिव कि अगर राम का रिलेशन श्याम के साथ है और श्याम का रिलेशन पंकज के साथ है, तो इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन आप तभी कहोगे जब राम का रिलेशन पंकज के साथ हो जाए, और वो भी फॉर ऑल, जिस सेट पे आप काम कर रहे हो वो सारे ए बी एंड सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ये रिलेशन जो होगा आपका वो ट्रांजिटिव होगा। राम का रिलेशन श्याम से है और श्याम का रिलेशन पंकज से है, तो राम का रिलेशन भी पंकज के साथ अगर हो जाए तो आप कह दोगे कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अदरवाइज अगर एक भी मेंबर इसके पास ऐसा मिल जाता है कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, तो हम कह देंगे कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। ओके, अब जो नेक्स्ट है, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज किए जा रहे हैं, वो है इन तीनों रिलेशंस को लेकर के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें दो चीजें और भी होती है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, a relation R in a set A is reflexive, symmetric and transitive, then it is said to be an equivalence set। इन तीनों को कंबाइन करके रिलेशन फॉर्म होगा, जो बोर्ड में आपसे आस्क किया जाता है कि आप लोग दिखाओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां से क्वेश्चंस आता है बोर्ड में आपके, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा सिंपली है कि अ रिलेशन इज साइड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इट मींस वो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन करें। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें से अगर कोई भी फेल होता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव फेल हो जाए या सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो बेटा इसके हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे एक्सरसाइज में, के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मींस हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स और इससे रिलेटेड जो बोर्ड में आज किए गए क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो के लिए आप लोगों को थैंक यू।